वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट और हमारा टॉपिक चल रहा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 17। Monopolistic competition is equal to monopoly plus competition. Explain. Monopolistic competition monopoly और competition है। True? वैसे true false नहीं पूछा, explain बोला है। क्यों? See, monopolistic competition में firms के पास सेल monopoly होती है अपना product features ऐड करके बेचने की, brand name की। बट क्योंकि competition बहुत ज़्यादा है, close substitutes है, इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन का भी कॉम्बिनेशन आ जाता है। सो लिखिए, राइट डाउन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन is a form of market where monopolistic competition is a form of market in which there are large number of buyers and large number of sellers, selling differentiated product at partial control over price, full stop. In this market, the firm has the monopoly. The firms have the monopoly over their brand name, their patent good or service, some features of the product, full stop. इस फॉर्म ऑफ मार्केट के अंदर फर्म्स के पास मोनोपोली होती है अपना ब्रांड नेम की, डव, पेटेंट गुड्स एंड प्रोडक्ट की, जैसे कि क्रीम बेस्ड सोप, एंड सम फीचर्स, जो शेप है डव सोप की, वो शेप उन्होंने पेटेंट कराई हुई है, तो उनके पास मोनोपोली होगी, फुल स्टॉप। This gave some sense of power. In the hands of the firms. Like monopoly. Full stop. जैसे मोनोपोली में पावर होती है, वैसे फर्म्स के पास पावर रहती है। नाउ चेंज द पैराग्राफ। As there are large number of sellers selling very close substitutes, as there are large number of sellers selling close substitutes, comma,
there is THERE, there is cutthroat competition in this industry. There is cutthroat competition in the industry. Full stop. Full stop. This is the feature of perfect competition. This is the feature of perfect competition. And hence, the firm cannot charge very high price, and hence the firm cannot charge very high price for its product. Full stop. Thus it is rightly said that, thus, full stop के बाद thus, comma, it is rightly said that monopolistic competition is a combination of monopoly and competition. Monopoly and competition. Full stop. Giving you 30 seconds. Read out the answer. Question number 17 किया हमने. Monopolistic competition is equal to monopoly plus competition. Explain. 30 minutes. Read it out. जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18th. Explain the implication of product differentiation in monopolistic competition. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की क्या implication है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब फीचर्स को ऐड करना, कंट्रोल ओवर प्राइस इन्फ्लुएंसर, प्राइस को इन्फ्लुएंस करना, प्राइस को चेंज करना इज द इम्प्लीकेशन. लिखिए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन is a common feature. Product differentiation is a common feature in monopolistic competition. Full stop. In this comma, firms sell the product of same nature with distinct features in the market. Firms sell products of same nature but distinct features in the market. The implication of this feature is that the implication of this feature is that firms can
influence the price of the product. Firms can influence the price of the product. Full stop. By adding some new features in the product, price can be raised. By adding some new features in the product, comma, price can be raised. And similarly, price can be reduced. Price can be reduced with change in its existing features. With change in its existing features. Full stop. It is important to note that prices can only be influenced but not decided by the firms. It is important to note that the price can only be influenced and not decided by the firms. Yeah, and will not decide by the firms. That's it. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होती है, उसकी क्या इम्प्लीकेशन है. 3 मार्कर आंसर. गेट योर 30 सेकेंड्स, रीड आउट दी आंसर. पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन 18th पर है. 18th को अच्छी तरह रीड आउट कीजिए आंसर को. 30 seconds फॉर यू. स्पीड इट अप. मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट. गिविंग रीजंस स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. All firms earn zero economic profits during long run under perfect competition as well as under monopolistic competition. Free entry and exit. Free entry and exit कौन सा competition है? Perfect monopolistic दोनों. और इसी वजह से नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती हैं. हमने 2 क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन 12 और 19 में हमने समझा था एंड इट इज ट्रू, लॉन्ग रन में फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाती हैं क्योंकि देयर इज नो बैरियर टू एंटर इनटू द इंडस्ट्री और टू टेक एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री. ट्रू. लिखिए 23 का बी पार्ट. 23 बी पार्ट. ट्रू कॉमा ट्रू कॉमा all firms earn normal profits. All firms earn normal profits. ब्रैकेट में zero economic profits, that is AR is equal to AC.
जब ए आर ए सी के इक्वल होते हैं, टी आर टी सी के इक्वल होते हैं, तो जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं. ऑल फर्म्स अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स ब्रैकेट में जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स, दैट इज ए आर इज इक्वल टू ए सी ब्रैकेट क्लोज, ड्यूरिंग लॉन्ग रन under perfect competition, during long run under perfect competition as well as under monopolistic competition as well as under monopolistic competition, full stop, full stop. It is due to the fact that there is no barrier. It is due to the fact that there is no barrier to enter into the industry. There is no barrier to enter into the industry or to take exit from the industry, or to take exit from the industry. ना ही इंडस्ट्री में आने का कोई बैरियर है, ना ही इंडस्ट्री से जाने का कोई बैरियर है. न्यू फर्म्स कैन एंटर एनी टाइम दे फील अलाइक, एंड एग्जिस्टिंग फर्म्स कैन एनी टाइम लीव एज दे फील अलाइक. फुल स्टॉप. स्पीड अप 23rd का बी पार्ट रीड आउट कीजिए. 15-20 seconds, not more than that. Moving to question number 25th. Moving to question number 25th. A firm is able to earn only normal profits in long run. A firm is able to earn only normal profits in long run, even though it is producing a product which is of a superior quality in relation to its competitor's product. चाहे आप सुपीरियर प्रोडक्ट बेचें, पर लॉन्ग रन में आप नॉर्मल प्रॉफिट्स ही कमाएंगे. आइडेंटिफाई द मार्केट स्ट्रक्चर. कौन सी मार्केट है ये? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन नहीं, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में इंफीरियर सुपीरियर प्रोडक्ट नहीं होते, सभी फर्म्स होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचती हैं. बट मोनोपोलिस्टिक में प्रोडक्ट्स का प्राइस थोड़ा चेंज होता है, कुछ सुपीरियर प्रोडक्ट्स होते हैं, बट प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होता है तो फीचर्स पे खर्चा भी ज़्यादा होता है, इसीलिए लॉन्ग रन में सभी नॉर्मल प्रॉफिट से ही कमाते हैं. सो आइडेंटिफाई द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच द फर्म इज ऑपरेटिंग. ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 2 फीचर ऑफ सच मार्केट स्ट्रक्चर. कोई 2 फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं. सो 25th का आंसर, द मार्केट hinted in the statement, the market hinted in the statement is monopolistic competition, is monopolistic competition. The market hinted in the statement is monopolistic competition. Following are some of its features. Following are some of its features. उन्होंने बोला कोई 2 फीचर्स एक्सप्लेन कीजिए, कोई भी 2 कर दीजिए. You can explain any 2 features, and those 2 features would be on page number 127 and 128. 127 and 128.
एक बार क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ लीजिए। आंसर तो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्यों, रीज़न मैंने आपको बता दिया, और फीचर्स कोई भी दो लिख सकते हैं। जब भी कोई दो फीचर्स पूछे जाए या कोई तीन फीचर्स पूछे जाए, बेटर होता है वो फीचर्स लिखें जो डेफिनेशन में आते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड partial control over price. Read it out. 25th. Speed up. Now move to page number 131. Please move to page 131. Revenue curves under different forms of market. Around half page इसमें already complete होगा। Around half page इसमें already complete होगा। अब हम मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक की बात कर रहे हैं। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में ज़्यादा बेचने के लिए प्राइस कम करना पड़ता है। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में ज़्यादा बेचने के लिए प्राइस कम करना पड़ता है, और इसी वजह से AR कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। वी हैव ऑलरेडी डन दैट इन रेवेन्यू चैप्टर ऑल्सो। सो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर AR इज अ पैरेलल टू X एक्सिस एंड मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक में डाउनवर्ड स्लोपिंग। और आप ये फीचर भी लिख सकते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में फीचर आ जाएगा AR कर्व इज कांस्टेंट एज प्राइस इज कांस्टेंट। मोनोपोली में आ जाएगा AR कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एज प्राइस इज टू बी रिड्यूस टू सेल मोर। और AR मोनोपोलिस्टिक में आ जाएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक और फीचर लिख सकते हैं, AR इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व एज प्राइस इज टू बी रिड्यूस टू सेल मोर। नाउ राइट डाउन ऑन पेज नंबर 131. In monopoly or monopolistic in monopoly and monopolistic competition, in monopoly and monopolistic competition, comma, price is to be reduced, price is to be reduced to sell more, full stop. Hence AR curve ब्रैकेट में प्राइस लाइन is a downward sloping curve, full stop. Refer figure 2, refer figure 2. Now we'll draw the figure. This is AR1, this is AR2. पहले प्राइस था OP, तो सेल थी OQ। ज़्यादा बेचने के लिए प्राइस कम किया, इतना प्राइस कम किया, इतनी सप्लाई बढ़ी, इतनी सप्लाई बढ़ी। ये ज़्यादा इलास्टिक है, ये कम इलास्टिक है। सो दिस इज योर फिगर 2. AR1, AR2. Here we have is average revenue, and here we have is quantity supplied. स्ट्रेट लाइन मत बना देना, ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग शो करनी है।
और फिगर की एक्सप्लेनेशन रहेगी AR1 and AR2 is downward sloping curve. That means price is to be reduced to sell more. प्राइस कम करना पड़ेगा ज़्यादा बेचने के लिए. इट इज important to note that AR1 is less elastic, AR1 is more elastic than AR2. Thus AR1 कम ज़्यादा इलास्टिक है, AR2 कम इलास्टिक है. Thus AR1 is revenue curve under AR1 is revenue curve under monopolistic competition, and AR2 is revenue curve under monopoly. under monopoly. मोनोपोलिस्टिक में ज़्यादा इलास्टिक होती है, मोनोपोली में कम इलास्टिक होती है. पर ऐसा क्यों? क्योंकि मोनोपोलिस्टिक में सब्स्टिट्यूट ज़्यादा होते हैं और मोनोपोली में सब्स्टिट्यूट्स कम. सो द मेजर रीज़न इज द अवेलेबिलिटी ऑफ substitutes. It is so because there are, और हमने पढ़ा हुआ है सब्स्टिट्यूट ज़्यादा तो इलास्टिसिटी ज़्यादा. It is so because there are close substitutes available in monopolistic and not in monopoly. Full stop. Giving you 2 minutes, 1.5 to 2 minutes. You are supposed to complete page 131. Speed up. हम इसे फीचर्स की तरफ भी लिख सकते हैं, जैसे आपको पहले बताया. परफेक्ट कंपटीशन में AR इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कांस्टेंट, एंड इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन AR इज डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन. थर्टी मोर सेकेंड्स बचा. स्पीड अप. Now this completes our monopolistic competition. Kindly open page number 129. Now let's move to oligopoly, a new form of market, the fourth form of market, oligopoly.
ऑन पेज 129। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ही एक स्पेशल मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें 10 से कम फर्म्स होती हैं। व्हेन यू काउंट द नेम ऑफ द फर्म्स, मैं 10 से कम कह रहा हूं, बट टेक्निकली देयर इज नो सेट नंबर डिसाइडेड। इंडिया के अंदर टेलीकॉम इंडस्ट्री ओलिगोपोली बन चुकी है। पहले मोनोपोलिस्टिक थी, अब ओलिगोपोली बन चुकी है। व्हाट वी हैव, जियो, एयरटेल, वोडाफोन प्लस आइडिया एंड VSNL। सिर्फ 4 फर्म्स हैं हमारे पास। आई कैन काउंट ऑन नंबर, हियर यू गो, VSNL, वोडाफोन प्लस आइडिया, जियो एंड एयरटेल। ओलिगोपोली मार्केट। लैपटॉप इंडस्ट्रीज जो लैपटॉप बनाती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो बनाती हैं, मोबाइल्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एंड्रॉयड, आईफोन, iClouds, और गूगल ने जैसे एंड्रॉयड फॉर्म बनाए हैं, आईफोन। उसके बाद हमारे पास आते हैं नोकिया के, एंड देन ब्लैकबेरी, वो भी अब काफ़ी कम हो गई है मार्केट स्ट्रक्चर में। दिस इज ओलिगोपोली। It is a form of the market in which there are few big sellers of a commodity selling either differentiated or homogeneous product at partial control over rigid price to large number of buyers to that commodity. Buyers बहुत ज़्यादा, sellers few, कुछ। Product differentiated भी हो सकता है, homogeneous भी हो सकता है। प्रोडक्ट का प्राइस पार्शियल कंट्रोल, बट प्राइस होता है रिजिड। प्राइस चेंज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। कर सकते हैं चेंज, बट बहुत ज़्यादा फीचर्स ऐड करके थोड़ा सा प्राइस चेंज करो, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करके थोड़ा सा प्राइस चेंज करो। So it is a form of market in which there are large number of buyers but few sellers selling either homogeneous or differentiated product to large number of buyers at partial control over rigid price. इंडिया के अंदर एग्जाम्पल है ऑटो प्रोड्यूसर्स, 4 व्हीलर्स जो प्रोड्यूस करते हैं या 2 व्हीलर्स प्रोड्यूस करते हैं, वेस्पा, एलिमेंट। देर आर वेरी फ्यू फर्म्स हु प्रोड्यूस 2 व्हीलर्स। टेलीकॉम इंडस्ट्री, जियो, एयरटेल एग्जाम्पल दिया। IT इंडस्ट्री in Indian market, and the features of this market oligopoly is: number 1, few firms and large number of buyers. There is very small number of firms ranging 3 to 10 or 2 to 10, but the size of the firms is very very large as it requires a very huge investment to enter into the oligopoly market. हमारे जैसा बंदा, आपके जैसा बंदा तो इस मार्केट में सोच भी नहीं सकता एंटर करने के लिए। एक बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए, और कैपिटल के लिए आपको कंपनी बनानी पड़ेगी, और कंपनी की गुडविल होगी तो लोग इन्वेस्ट करेंगे। These few firms render goods and services to the large base of buyers in the market. पूरी कंट्री का बेस कवर करते हैं ये। 2, बैरियर्स। इस फर्म में, इस मार्केट में एंटर करना परफेक्ट कंपटीशन में क्या है? इजी, वेरी इजी। मोनोपोलिस्टिक में है इजी, मोनोपोली में है इम्पॉसिबल। परफेक्ट कंपटीशन इज वेरी इजी, मोनोपोलिस्टिक इज इजी, ओलिगोपोली इज मोनोपोली इज इम्पॉसिबल, ओलिगोपोली इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसी मार्केट में एंटर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। प्लीज अंडरलाइन ऑलमोस्ट। It's very difficult to enter in oligopoly market due to rigid legal formalities and large capital. पहले तो formalities ही बहुत ज़्यादा पूरी करनी पड़ेंगी, और formalities पूरी हो गई तो आपको पैसा बहुत चाहिए, capital बहुत चाहिए। Entry in oligopoly market is next to impossible.
एग्जिस्टिंग फर्म्स ट्राई टू अडॉप्ट एंट्री प्रिवेंटिंग प्राइस। जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो आपस में कार्टल्स बना सकते हैं, और अगर कार्टल्स बन गए तो प्राइस एंटर करना और मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए कैसे, लिसन टू द एग्जाम्पल। देयर आर 5 फर्म्स, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, 5 फर्म्स, वो प्रोडक्ट को बेचते हैं कुछ इस प्राइस पर 50, 52, 57, 48 एंड 49। ये 5 फर्म्स हैं, इस प्राइजेस पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एक रेंज सेट हुई हुई है 45 से 60 या 48 टू 60 प्राइस डिसाइड हुआ हुआ रेंज। अब एक मार्केट में न्यू फर्म एंटर करती है। जब ये फर्म एंटर करती है तो उसे सबसे पहले बहुत कैपिटल चाहिए। चलिए, उसने मैनेज किया समहाउ, बहुत ज़्यादा उसने लोन लिया, बहुत ज़्यादा डेट लिया, और बहुत मुश्किल से गुडविल से डिवेंचर्स शेयर इशू करके पैसे इकट्ठे किए। फिर लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की बहुत ज़्यादा। ये दोनों चीज़ें पूरी करने के बाद वो मार्केट में एंटर कर गई, और उसने प्राइस रख लिया कुछ 55 कि 48 टू 60 प्राइस है, 55 पे बेच देते हैं। फीचर्स उस तरीके से ऐड किए, डिफरेंशिएशन। अब देखिए क्या हुआ, इन फर्म्स ने बनाए कार्टल्स, और ये कार्टल करके इन्होंने ए, बी, सी, डी और ई ने 40 रुपीज पे बेचना शुरू कर दिया। क्या ये 40 रुपीज पे बेच सकते हैं? सस्टेनेबल लॉसेस, शॉर्ट पीरियड लॉस। 50 की चीज़ 40 में, 52 की चीज़ 40 में, 57 की चीज़ 40 में, 48 की चीज़ 40 में, 49 की चीज़ 40 में। इन्होंने 40 कर लिया कार्टल्स बना के। ये लॉसेस में चले गए, बट इनके पास पुराना कस्टमर बेस है। क्योंकि पुराना कस्टमर बेस है तो ये लॉसेस को बेयर कर सकते हैं। और ये कौन से लॉसेस हैं? सस्टेनेबल। इन्होंने लॉसेस बेयर कर लिए। क्या नई फर्म 55 पे बेच सकती है, 40 पे बेच सकती है? नो। तो वो 55 पे बेचेगी, कोई नया कस्टमर ही नहीं आएगा। अब नई फर्म के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो 40 पे बेचे या 55 पे बेचे। 55 पे बेचेगी तो कस्टमर्स आएंगे नहीं, क्योंकि कस्टमर्स तो पहले से हैं, नए कस्टमर थोड़ा आएंगे। पुराने कस्टमर कहेंगे हम तो यहीं पर रहे, हमें तो फायदा मिल रहा है, हम ये प्रोडक्ट क्यों खरीदें 55 में। 40 पे वो बेच पाएगी नहीं, क्योंकि वो लॉसेस बेयर नहीं कर सकती, नई फर्म है, पुराने प्रॉफिट्स ही नहीं है। और अगर 40 पे करेगी भी तो बहुत जल्दी मार्केट से एग्जिट लेना पड़ेगा, क्योंकि उनका कस्टमर बेस इतना स्ट्रांग नहीं है, और ये मार्केट से ले लेगी एग्जिट। और इसके एग्जिट के बाद ए, बी, सी, डी एंड ई फिर से उसी प्राइजेस पे आ जाएंगे। और उसी प्राइजेस पे क्यों? प्राइजेस में प्लस कर देंगे, क्योंकि जो लॉसेस थे उसको भी तो कवर करना है, जो लॉसेस पीछे हुए हैं उन लॉसेस को भी तो बेयर करना है, कवर करना है। और 50 की चीज़ वो 55, 50 की 2 चीज़ 57, 57 की चीज़ 62, 48 की चीज़ 53, 49 की चीज़ 54 पे बेचना शुरू कर देंगे, 5-5 रुपये बढ़ा देंगे। क्योंकि जैसे ही उन्होंने 5-5 रुपये बढ़ाए तो ये जो लॉसेस हुए हैं वो भी कवर हो जाएंगे। गॉट इट? दिस इज व्हाट द एंट्री प्रिवेंटिंग प्राइस, दिस इज एंट्री प्रिवेंटिंग प्राइस। प्रिवेंट करना मार्केट में ताकि नई फर्म मार्केट में ना आए। सो ऐसी मार्केट में एंटर करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि पैसा बहुत चाहिए, फॉर्मेलिटीज बहुत है। और अगर गलती से एंटर कर भी गए तो पुरानी फर्म्स अगर कार्टल्स बना लें, प्राइस कम कर दें, तो आप मार्केट में सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। कार्टल बैरियर्स, existing firms try to adopt entry preventing price, that is price that demotivates other firms to enter into the industry, which restricts the entry of new firms.
थर्ड, कार्टल्स। ऐसी मार्केट में कार्टल्स बनाना बहुत इजी है क्योंकि फर्म्स बहुत कम होती हैं, 5-7 फर्म्स हैं, एक बार मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, कार्टल्स बन गए। फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स इज अ कॉमन फीचर इन ओलिगोपोली मार्केट। देयर मे बी फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट फर्म्स इन दिस टाइप ऑफ मार्केट। फॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल कैसे? भाई नॉर्थ इंडिया तेरा, साउथ इंडिया मेरा। अगर एयरटेल और जियो अब बहुत डिफिकल्ट है काम करना उनके लिए, देयर कैन बी फॉर्मल कम्युनिकेशन। सारे कॉर्पोरेट कनेक्शंस आपके, सारे नॉन कॉर्पोरेट कनेक्शंस मेरे, फॉर्मल। इनफॉर्मल जैसे कोक और पेप्सी में है, डोमिनोज आपका, पेप्सी मेरा, सॉरी डोमिनोज आपका, पिज़्ज़ा हट हमारा, मैकडोनल्ड्स आपका, बर्गर किंग मेरा। दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दे क्रिएट मोनोपोली फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और उनका मेजर प्रॉफिट इस कार्टल्स की वजह से आता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कोलिसिव ओलिगोपोली। कोलिसिव मतलब जुड़ना। ड्यू टू दिस फीचर फर्म्स अंडर ओलिगोपोली मे अर्न एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन। सो ओलिगोपोली में लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, बट अगर वो कोलाइड हो जाए, कोलिसिव हो जाए, कार्टल्स बना लें, तो वो लॉन्ग रन में एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स भी कमा सकते हैं। हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। एक फर्म दूसरी फर्म में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है। ऐसी मार्केट में फर्म्स आपस में इंटरडिपेंडेंट रहती हैं। एक फर्म का डिसीजन दूसरी फर्म को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जियो ने जियो सिनेमा की सब्सक्रिप्शन दी, एयरटेल ने Z5 की सब्सक्रिप्शन देनी शुरू कर दी। जियो ने Amazon प्राइम की सब्सक्रिप्शन दी, तो एयरटेल ने हो सकता है आने वाले टाइम पे नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन दे दे। इंटरडिपेंडेंट। पॉलिसीज ऑफ वन फर्म सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द पॉलिसीज ऑफ अदर फर्म्स। एक फर्म की पॉलिसी दूसरी फर्म को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इफेक्ट करती है। देयर इज हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द फर्म्स। Firms produce close substitutes of one another. Therefore, any time there may be price war or non-price war between them. किसी भी टाइम फर्म्स की आपस में लड़ाई हो सकती है अगर नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली है तो, चाहे प्राइस की वजह से हो चाहे फीचर्स की वजह से हो। Thus they depend on each other's decisions for one's price output decision. एक का डिसीजन दूसरे पे बहुत इंपैक्ट करता है, एक का प्राइस दूसरे पर बहुत इफेक्ट करता है। फुल स्टॉप। आगे लिखिए। प्राइस एंड नॉन प्राइस वॉर इज पॉसिबल। प्राइस एंड नॉन प्राइस वॉर इज पॉसिबल in case of non-collisive oligopoly. In case of non-collisive oligopoly. Full stop. So we have 5 features. हम 4 features कर चुके हैं. The 5th feature we'll do in next lecture. हमने अभी किया what is oligopoly and what are its features. 4 features we have done. The 5th one we'll do in tomorrow's lecture. Bye bye. Take care. God bless.